A very good morning to all of you. Today I am going to start one of the important chapter of class 11, that is bank reconciliation statement. So first of all, let me tell you the meaning of bank reconciliation statement. Basically, it is a statement which is prepared to reconcile the differences between cash book and passbook by the account holder. Generally, account holder maintains all his record in a cash book with bank column. All check related entry, whether it's paid or it's receipt, all are recorded in a cash book. Simultaneously, all these transactions are to be recorded in passbook as well by the bank. But sometimes some transactions are recorded in cash book, and, but they are not to be recorded in passbook. And on the other hand, some transactions are recorded in passbook only, but they are not to be recorded in cash book. And due to this, these two books make a difference. Like accountant wants to check the cash book balance with passbook, and he finds that the balance are not matching. There are some difference in the amount of these two balances, and to reconcile these differences, he prepare a statement which is called bank reconciliation statement. Now let us see the regions. What can be the possible reasons due to which these two books are not matching? Uh, so these are the reasons why these cash book and passbook are not matching. First, see the first transaction: checks deposited but not collected by bank. Uh, Account holder depositing checks. When he deposits checks, when he's sending checks to bank for deposits, first he will enter all his this transaction in cash book, and due to that cash book will increase. But these checks will not be collected by bank. Due to that passbook will not entertain these checks. So on comparison, we will find that cash book is increasing and passbook is not increasing. Now you can see the difference. Cash book is increasing, plus sign indicates that, and passbook is not increasing. It means comparatively it is decreasing. So minus sign indicating that. Now next transaction: checks issued but not presented for payment. Whenever account holder issued check, then he will immediately reduce this from his cash book. But since these checks to whom have been given, they are not presenting these checks to the bank for payment, so passbook will not in decrease as the cash book has been decreased. So you can see with the transaction what is the effect of the transaction. Cash book is straight away decreasing, but it is not entertained in passbook, so it will not increase. So comparatively it will remain not affected, so it will be comparatively increased. Now next transaction: interest allowed by the bank. So whenever interest allowed by the bank directly entertain this transaction in passbook. So bank will increase passbook, but since no intimation given to account holder, so cash will be not affected. So cash will remain uh, comparatively minus. Next, interest charged by the bank. So interest charge करेंगे bank, so bank will reduce this balance, this charges from the passbook. So passbook will decrease, and since there is no transaction in cash book, so cash will remain unaffected, and so cash will be increases. Next is the interest and dividend collected by the bank. So whenever bank collect the interest and dividend, so bank will increase the passbook, and and cash book is not affected, so cash will remain not increasing, so it will remain as minus, decreasing. Next is insurance premium paid by the bank. Sometimes account holder gives instruction to the bank to pay annual insurance premium or monthly insurance premium. So bank paid on due date, but since it is not giving any information to the cash book to the account holder, so cash book will not be affected. So passbook will be minus, and comparatively cash book will be plus. Now next transactions are directly deposited into by the customer. Whenever customer deposits, so passbook will increase, and no information received in cash book, so cash will not be affected, and so cash book will be minus. Next, paid by the bank to the creditor. Sometimes bank directly paying money to the creditors or third party as per the standing instruction given by the account holder. So bank will pay, so automatically it will reduce its passbook. Uh, since no information, no intimation given to cash book, so cash will not be affected. So cash will not be minus. So on comparison, we will find
Passbook is decreasing, but cash book is not decreasing. So cash book is increases comparatively. Similarly, checks deposits. Whenever checks deposited, cash book always increase. But return dishonor means passbook. These have not been entertained in passbook. So cash book will increase, passbook will not be increasing. So comparatively, it will be shown as a minus. Bills collected by the bank on behalf of the customer. Sometimes goods are sold to the customer on credit, and directly these money received from the debtors from the customers by the bank directly. So in that case, passbook will be increasing, and no information received in cash book, so cash book will be not affected, so it will remain as minus. And next is a bill retired. Sometimes some bill are to be paid by the account holder, but these bill are paid by the bank, so bank will pay from the passbook balance. So in that case, passbook will be decreasing, and no information received in cash book, so cash book will comparatively will be increases. So these are the statement which are making a difference between cash book and passbook. And students, आप इन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुन लें और समझ लें तो आपके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना बहुत आसान रहेगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ती है, और क्योंकि उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन पासबुक में नहीं होती तो कंपैरेटिवली पासबुक नहीं बढ़ेगी, तो हम क्या कहेंगे, कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। ऐसे ही अगर हम बात करें चेक इशू करने की, जब जब अकाउंट होल्डर चेक इशू करेगा और वो चेक प्रेजेंट ही नहीं होंगे पेमेंट के लिए, तो उस केस में क्या होगा, कैश बुक तो तुरंत माइनस हो जाएगी, क्योंकि उनकी कोई भी ट्रांजेक्शन पासबुक में नहीं हो रही है, तो पासबुक विल रिमेन एज इंक्रीजेज। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट अलाउ की बात करें तो बैंक जब भी इंटरेस्ट अलाउ करेगा, बैंक पासबुक को बढ़ा देगा, और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक के पास नहीं है तो कैश बुक नहीं बढ़ पाएगी, तो कैश बुक विल बी रिमेन एज माइनस। ऐसे ही इंटरेस्ट चार्ज की बात करें, जब जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा पासबुक के बैलेंस से बैंक माइनस कर लेगा, और किसी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक के पास नहीं है तो कैश बुक विल रिमेन एज इंक्रीजेस। ऐसे ही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अगर बैंक कलेक्ट करता है तो बैंक पासबुक को बढ़ा देगा, और क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक में नहीं है तो कंपेरेटिवली कैश बुक क्या रहेगी, कैश बुक माइनस रहेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे होगा तो बैंक पासबुक में एंट्री करता है तो बैंक पासबुक को डेबिट कर लेगा, यानी पासबुक को माइनस कर लेगा, और उस केस में कैश बुक क्या रहेगी, कैश बुक प्लस रहेगी। कोई भी कस्टमर का पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा करता है तो पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक नहीं बढ़ेगी, तो कंपैरेटिवली कैश बुक शोन एज माइनस। ऐसे ही अगर कि थर्ड पार्टी को बैंक पे करता है, बैंक पे करेगा पासबुक से तो पासबुक हो जाएगी माइनस, और क्योंकि उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है तो कैश बुक विल रिमेन एज प्लस। ऐसे ही चेक्स डिपॉजिट, जब जब चेक्स डिपॉजिट होगी कैश बुक हमेशा बढ़ेगी, बट क्योंकि वो रिटर्न डिसऑनर्ड हो रहे हैं तो उनकी एंट्री पासबुक में नहीं हो रही है, और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक को रिसीव नहीं हो रही है, तो उस केस में कैश बुक बढ़ी रहेगी और पासबुक माइनस हो जाएगी। ऐसे ही कुछ ऐसे बिल होते हैं जो कस्टमर को गुड्स सेल किए गए हैं उधार में, तो उसका जो भी पेमेंट है बैंक डायरेक्टली कस्टमर से कलेक्ट कर लेता है, तो बैंक डायरेक्टली कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब पासबुक को वो प्लस कर देगा, और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक में नहीं एंटरटेन होने की वजह से कैश बुक प्लस नहीं हो पाएगी, तो कंपैरिजन करने पे कैश बुक विल रिमेन माइनस। ऐसे ही कोई बिल है हमारे बिल पे करने हैं तो रादर बैंक बैंक बिल डायरेक्टली पे कर रहा है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक के पास है नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पासबुक माइनस हो जाएगी, और क्योंकि कैश बुक में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो कैश बुक बढ़ी रहेगी। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट की, जिसका फॉर्मेट है अ, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, जो क्वेश्चन दिए होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए पहले फॉर्मेट के मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताऊँ, पर्टिकुलर्स यहाँ डिटेल है सारी, फिर एक प्लस आइटम्स और एक माइनस आइटम है, यानी प्लस आइटम में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनसे कैश बुक बढ़ रही है, और माइनस में वो चीज़ें आएंगी जिससे कैश बुक माइनस हो रही है। तो क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो सकता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया जा सकता है, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया जा सकता है। चार तरह के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो उसकी एंट्री प्लस आइटम में होगी, और फिर यहाँ पर हम सारी ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे, और फिर फाइनली हम आंसर निकाल देंगे, हमारा आंसर जो भी पासबुक का बैलेंस दिखाई पड़ रहा होगा उससे वो मैच कर जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक को हम प्लस के कॉलम में एंटर करेंगे, और सारी ट्रांजेक्शन यहाँ एंटर करने के बाद हमारा जो आंसर है वो डेबिट कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ मैच कर जाएगा। ऐसे ही अगर ओवरड्राफ्ट की बात करें, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हो क्वेश्चन में, तो जो स्टार्टिंग बैलेंस है वो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक माइनस वैल्यू है तो ये माइनस से स्टार्ट होगा, फिर हम यहाँ सारी ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे,
और सारी ट्रांजेक्शन एंटर करने के बाद जो हमारा आंसर है वो मैच कर जाएगा हमारे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। ऐसे ही बात करें अगर हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हो तो इसको हम माइनस में एंटर करेंगे और फिर सारी ट्रांजेक्शन एंटर करने के बाद हमारा आंसर मैच कर जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये फॉर्मेट है, चारों तरह के क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, मैंने पूरे चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन that really going to be helpful for you, you can understand. Now you see the question number 1. इस क्वेश्चन नंबर में जो पहला जो लेवल है वो एंट्री लेवल है, जहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं और उनको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। तो हमने एक BRS बनाना है किस मंथ एंड के लिए, 31 मार्च 2025 के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इनके हिसाब से हमने कैश बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है और हमने पता करना है कि हमारा पासबुक का बैलेंस क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम एंटर करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव साइड, प्लस साइड में, 1,24,500। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, चेक इशू। जब जब चेक इशू होंगे तो कैश बुक हमेशा माइनस होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको नोट्स में बताया, जो पीछे नोट्स लिखे हुए हैं उसमें चेक इशू करने में कैश बुक माइनस होती है और पासबुक प्लस होती है। क्योंकि यहाँ कैश बुक ही दी हुई है तो हम कैश बुक के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कैश बुक इन ट्रांजेक्शन से कम हो रही है तो हम उसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने का मतलब है उसकी एंट्री प्लस में करेंगे। और अगर कैश बुक कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करने वाला उसकी एंट्री माइनस में कर देंगे। नाउ लुक एट द ट्रांजेक्शन नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब चेक इशू किए जाएंगे तो कैश बुक क्या होगी, कैश बुक माइनस हो जाएगी। क्योंकि कैश बुक माइनस हो रही है तो हम इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, तो इसको हम एंटर कर देंगे यहाँ प्लस कॉलम में, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जब जब चेक डिपॉजिट होंगे तो कैश बुक प्लस होगी और पासबुक माइनस होगी। क्योंकि हम कैश बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो कैश बुक प्लस हो रही है तो हम इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे। ऐसी नेक्स्ट एंट्री की बात करें, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। बैंक चार्जेस बैंक लगाता है तो बैंक चार्जेस पासबुक में एंटर करेगा, तो पासबुक को बैंक क्या करेगा, माइनस कर लेगा। और क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैश बुक को मिली नहीं है तो कैश बुक कंपेरेटिवली बड़ी रहेगी। क्योंकि कैश बुक ये प्लस हो रही है तो करेक्शन करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम दोनों साइड को टोटल कर लेंगे, प्लस का टोटल कितना आ रहा है, 1,35,500, और माइनस का कॉलम कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 14,500। तो इस प्लस के कॉलम टोटल से माइनस का टोटल माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज 1,21,000, और उसको हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ मैंने कैश बुक के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 30 अप्रैल 2025। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो अब जो क्वेश्चन है वो पासबुक का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक हम इसको लिख देते हैं 75,500। अब हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ये पासबुक के हिसाब से करना है। इसका मतलब ये है कि अगर पासबुक बढ़ रही है तो हम इसको कम कर देंगे, और अगर ये कम हो रही है तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। व्हेनेवर चेक इशूड ऑलवेज कैश बुक इज माइनस एंड पासबुक इज प्लस। नाउ यू कैन सी पासबुक प्लस हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, करेक्शन करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, ये 11,000 की एंट्री कहाँ जाएगी, ये यहाँ माइनस में आ जाएगी 11,000 की एंट्री। ये गलती से 3,000 लिखा हुआ, लेट मी करेक्ट दिस, ये 11,000 की एंट्री आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, चेक्स डिपॉजिट। जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे तो कैश बुक क्या होगी, प्लस होगी, और पासबुक क्या होगी, माइनस होगी। क्योंकि हम पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं और पासबुक माइनस हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब इसको हम प्लस में एंट्री कर देंगे, तो ये 14,000 प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 500। बैंक ने बैंक चार्जेस को चार्ज किया है तो पासबुक क्या हो गई है, पासबुक हो गई है माइनस। और क्योंकि पासबुक माइनस हो रही है तो करेक्शन करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट। और फिर से हम वही प्लस का टोटल करेंगे और माइनस का टोटल करेंगे, इस प्लस के टोटल से माइनस टोटल माइनस करेंगे, तो 90,000 प्लस का टोटल है, और 3,000 सॉरी 11,000 माइनस का टोटल है। तो हम 90,000 से 11,000 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 79,000। सो लेट मी करेक्ट दिस, सो दैट वे वी आर एबल टू गेट आंसर। स्टेटमेंट हम लिख देंगे, क्योंकि हमने कैश पासबुक से शुरू किया है तो हमारा आंसर कैश कैश के हिसाब से मैच कर जाएगा। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 वेयर आई हैव टेकन बोथ द क्वेश्चन ऑफ, जहाँ पे दोनों ही बुक्स फेवरेबल थी।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। Now look at question number 3. Prepare a bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st May 2025. Credit balance as per cash book, यानी overdraft balance as per cash book is given. So let me write here. So first of all, credit balance as per cash book, या हम इसको लिख सकते हैं overdraft as per cash book 36,000, क्योंकि ये overdraft है, माइनस की वैल्यू है, तो ये एंट्री आ जाएगी माइनस में 36,000। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस बुक के हिसाब से करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, इफ़ दिस कैश बुक डिक्रीजेस, अगर ये कैश बुक कम होती है तो हम इसकी एंट्री, इसको हम बढ़ा देंगे, मतलब इसकी एंट्री प्लस में करेंगे। और अगर ये कैश बुक बढ़ रही है तो इसको हम डिक्रीज कर देंगे, यानी इसकी एंट्री माइनस में कर देंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब जब चेक इशू होंगे कैश बुक क्या होगी माइनस और पासबुक होती है प्लस। तो आप देखो कैश बुक माइनस हो रही है, तो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो 11,000 की एंट्री प्लस में आ जाएगी। ऐसे ही अब आप देखो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, तो चेक जब जब चेक डिपॉजिट किए जाते हैं कैश बुक हमेशा प्लस होगी। तो कैश बुक प्लस हो रही है और पासबुक माइनस हो रही है, क्योंकि हम कैश बुक के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैश बुक प्लस हो रही है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस में एंट्री कर देंगे, तो ये माइनस में आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो बैंक चार्जेस से पासबुक क्या हो रही है, माइनस हो रही है, और कैश बुक प्लस हो रही है। तो कैश बुक हमें सिर्फ कैश बुक के हिसाब से देखना है, कैश बुक प्लस हो रही है तो इसका करेक्शन कैसे होगा, इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस माइनस का टोटल करेंगे, और इस माइनस के टोटल में जो कि टोटल आ रहा है 50,500, और जो प्लस आइटम का टोटल है वो आ रहा है 11,000। तो हम इस 50,500 से 11,000 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, राइट। या हम इसको लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ओवरड्राफ्ट। ये तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था। अब हम लेते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। फॉर्मेट क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मेथड, वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो हम स्टार्ट करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक माइनस वैल्यू है। अब जो आपको ध्यान देना, वो ये ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन पासबुक के हिसाब से किया जाएगा, यानी पासबुक क्या है, अगर पासबुक बढ़ रही है तो हम इसे कम कर देंगे, और अगर ये कम हो रही है तो इसको हम बढ़ा देंगे। दिस इज द ओनली रूल वी हैव टू अप्लाई। नाउ चेक, सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जब जब चेक इशू होंगे कैश बुक माइनस होती है और पासबुक प्लस होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन करना, देखो बच्चों पासबुक प्लस हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, चेक्स डिपॉजिट किए गए बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे तो कैश बुक क्या होगी, प्लस होगी, और पासबुक क्या होगी, माइनस होगी। क्योंकि हम पासबुक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो पासबुक माइनस हो रही है तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, हम इसको हम इस एंट्री को हम प्लस में एंटर कर देंगे। अब आप देखिए बैंक चार्जेस जब जब बैंक लगाया बैंक चार्जेस पासबुक में एंटर होता है, तो पासबुक क्या होती है हमेशा माइनस, और कैश बुक क्या होती है प्लस। तो पासबुक क्या हो रही है, पासबुक माइनस हो रही है, तो इसको करेक्शन करने के हम क्या कर देंगे, इसको प्लस में एंटर कर देंगे। और अब हम सारी वैल्यू एंटर करने के बाद हम इसका आंसर निकाल देंगे। लाइक हम पहले जो ये माइनस आइटम गलती से प्लस लिखा हुआ है, लेट मी करेक्ट दिस। माइनस आइटम में ये 49,000 प्लस 11,000 टोटल आ रहा है 60,000, और जो प्लस का टोटल आ रहा है 14,800 आ रहा है। तो इस 60,000 में से 14,800 को माइनस कर देंगे, जो कि मैंने माइनस करके दिखाया हुआ है। तो ये आंसर आ जाएगा 45,200, और जो स्टेटमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या हम इसको लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड ध्यान से देखिए आप इसको। ये जो क्वेश्चन थे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडरेट लेवल, जहाँ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट थोड़े से ट्रिकी। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो तो सबसे पहले स्टेटमेंट आ जाएगी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ ना लिखा हो तो बैलेंस हमेशा फेवरेबल होगा, डेबिट बैलेंस होगा तो उसकी एंट्री होगी प्लस आइटम में 35,000, राइट। अब हम क्या करते हैं, चेक इशू किया, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, इस फिगर को अमाउंट को भी एक मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं, जो अमाउंट लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट को समझ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जब जब चेक इशू होंगे तो कैश बुक हमेशा माइनस होगी और पास बुक हमेशा प्लस होगी। क्वेश्चन ये आ रहा है कि अमाउंट को क्या लिया जाएगा, तो आप समझते हैं इसको भी। चेक इशू किए गए 12,000 के, जिसमें से
सिर्फ 7,000 के चेक्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए, यानी ऐसे कितने चेक्स हैं जो प्रेजेंट नहीं हो पाए, वो होंगे 5,000। 12,000 में से 7,000 माइनस किया तो 5,000 वो अमाउंट है जिसको हमने कंसिडर करना है। कैश बुक कितने से कम हो गई, 5,000 से, और पासबुक कितने से बढ़ गई, 5,000 से। क्योंकि कैश बुक ये 5,000 से कम हो रही है तो हम इसको प्लस में एंटर कर देंगे 5,000, राइट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद, चेक्स डिपॉजिटेड वर्थ रुपीज 9,000। तो चेक्स डिपॉजिट करने से कैश बुक हमेशा प्लस होती है और पासबुक हमेशा माइनस होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमाउंट को, क्योंकि अमाउंट हमें करेक्ट अमाउंट भरना पड़ेगा, तो लेट अस सी द अमाउंट। चेक्स डिपॉजिट रुपीज वर्थ रुपीज 9,000, आउट ऑफ विच 6,800 वर्थ रुपीज चेक्स वर ओनली कलेक्टेड। तो हाउ मेनी चेक्स वर देयर विच आर नॉट कलेक्टेड, तो हम क्या उसको कैसे निकालेंगे, इस 9,000 में से 6,800 को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आ जाएगा 2,200 का, तो उसको हम एंटर कर देंगे कैश बुक में प्लस 2,200 और पासबुक में माइनस 2,200, और इसकी एंट्री आ जाएगी माइनस कॉलम में 2,200, राइट। क्योंकि कैश बुक बढ़ रही है तो हम इसको कम कर देंगे, तो इसकी एंट्री माइनस में आ जाएगी। अब बात करते हैं ये प्लस आइटम, देखो लेट मी करेक्ट दिस, दिस इज माइनस कॉलम। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चेक्स ऑफ रुपीज 3,500 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने कुछ चेक्स बैंक में डिपॉजिट होने के लिए भेजे हैं, लेकिन हम उसको अपनी कैश बुक में लिखना भूल गए। इसका मतलब है इनकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, पर इनकी एंट्री पासबुक में हो गई है। सो उस केस में कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है तो कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस, और पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस। क्योंकि कैश बुक माइनस हो रही है तो ये इसका इफेक्ट है। इसका करेक्शन कैसे होगा, हम इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ाने के लिए इसको हमको प्लस में एंटर कर देंगे। ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। देयर वाज अ डेबिट ट्रांजैक्शन इन पासबुक बाय बैंक 400 फॉर मिसलेनियस चार्जेस। बैंक ने कुछ अमाउंट डेबिट किया है पासबुक को फॉर मिसलेनियस चार्जेस के नाम से। तो उस केस में पासबुक को क्या कर दिया गया है, पासबुक को कम कर दिया है बैंक ने, और क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कैश बुक के पास, तो उस केस में कैश बुक बड़ी रहेगी। तो अब देखिए कैश बुक बड़ी हुई है, क्योंकि कैश बुक के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका करेक्शन कैसे होगा, इसको हम माइनस में, इसको डिक्रीज कर देंगे, इसको माइनस में लिख देंगे, राइट। फिर आप इसको वैसे जैसे बाकी क्वेश्चन किए हैं इसका टोटल करेंगे। तो ये प्लस का टोटल पहले किया 43,500 है, और फिर माइनस का टोटल किया दैट इज 2,600। इस टोटल में से इस प्लस के टोटल से माइनस के टोटल को माइनस कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा होगा पासबुक का बैलेंस। तो उसको हम स्टेटमेंट को लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कैश बुक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो सारी स्टेटमेंट मैंने सोल्यूशन में भी लिखी हुई है। सो हम यहीं से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, बैलेंस एज पर पासबुक। सो पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कुछ ना लिखा हुआ तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है। पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो बैलेंस एज पर पासबुक, हमने इसको प्लस में एंटर किया 90,000। अब हम देखते हैं ट्रांजेक्ट चेक इशूड, सच अमाउंट ऑफ चेक्स वर इशूड एंड सम वर प्रेजेंटेड। सो वो फिगर आउट कर लेते हैं उस वैल्यू को। उससे पहले हम इसका इफेक्ट निकाल लेते हैं। चेक इश्यू करने से कैश बुक क्या होती है, कैश बुक माइनस होती है, और पासबुक क्या होती है, प्लस होती है। अब कंसर्न हमारा है वो व्हाट अमाउंट वी शुड टेक। तो चेक इश्यू 22,000, जिसमें से 9,000 के चेक्स ही प्रेजेंट हुए पेमेंट होने के लिए। तो इसका मतलब कितने ऐसे चेक हैं जो जो मिस्टेकन फिगर है, जिससे अमाउंट, जिससे दोनों बुक मिसमैच हुई होंगी, वो अमाउंट होगा 22,000 में से हम 9,000 माइनस कर देते हैं। तो 13,000 की ऐसी फिगर है जिससे हमारा डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम कैश बुक में -13,000 लिख देंगे और पासबुक में +13,000 कर देंगे। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे कैश बुक हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, और पासबुक क्या होगी, हमेशा माइनस होगी। समझना ये है कि किस अमाउंट को हम प्लस में लिख, कितना अमाउंट को लिखें कैश बुक के प्लस में। तो उसके लिए हमने इसको समझना पड़ेगा। चेक्स डिपॉजिट वर्थ रुपीज 15,000, आउट ऑफ विच ओनली 7,000 चेक्स वर कलेक्टेड। 15,000 के चेक्स हमने डिपॉजिट किए जिसमें बैंक में सिर्फ 7,000 के चेक्स कलेक्ट हुए। इसका मतलब कितने ऐसे चेक्स हैं जो कलेक्ट नहीं हो पाए। तो 15,000 से 7,000 को माइनस कर देंगे, तो 8,000 हमारी ऐसी फिगर आएगी जिसको हम कैश बुक के प्लस कॉलम में लिखेंगे और पासबुक के माइनस कॉलम में लिखेंगे। अब क्योंकि क्योंकि पासबुक कम हो रही है 8,000 से, तो हम क्या करेंगे, इसको, पासबुक कम हो रही है, हमारा क्वेश्चन पासबुक के हिसाब से है, तो पासबुक कम हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्लस में एंटर कर देंगे, तो ये अमाउंट प्लस में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। अगर कैश बुक की पेमेंट साइड ओवरकास्ट होगी, इसका मतलब जो एक रिसिप्ट कॉलम होता है, पेमेंट साइड कॉलम होता है, तो अगर पेमेंट साइड हमारी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास जो जो डिफरेंस होगा, जो हमारा कैश बुक का बैलेंस होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। सो हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी, कैश बुक बढ़ जाएगी, और पासबुक कैश बुक हमारी बढ़ जाएगी,
यहाँ गलती से माइनस लिखा हुआ है तो इसे करेक्ट कर देते हैं। कैश बुक हमारी बढ़ जाएगी। लेट मी करेक्ट दिस। पेमेंट साइड अगर ओवरकास्ट होगी तो इसका मतलब हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो कैश बुक क्या हो रही है बच्चों, कैश बुक माइनस हो रही है और पासबुक क्या हो रही है, प्लस हो रही है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पासबुक के हिसाब से है, तो क्योंकि पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पासबुक क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, हम इसको माइनस में एंटर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया और वो बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक। तो उस केस में क्या हुआ, जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा, ये स्टेटमेंट थोड़ा एरर है, इसे लेट मी करेक्ट दिस, दिस इज कैश। बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया लेकिन उसको कैश में एंटर नहीं किया गया है। तो जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो पासबुक क्या हो जाएगी, पासबुक बढ़ जाएगी, और कैश बुक क्या होगी, कैश बुक माइनस हो जाएगी। क्योंकि हम पासबुक को ही फॉलो कर रहे हैं और पासबुक इस स्टेटमेंट से, इस ट्रांजेक्शन से बढ़ रही है, तो करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर बट नो रिकॉर्ड वाज एंटर्ड इन कैश बुक। अगर कस्टमर डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर देता है तो उसका सीधा इफेक्ट ये होगा कि पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक नहीं बढ़ेगी। तो क्योंकि हम पासबुक को ही फॉलो कर रहे हैं और पासबुक बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्शन करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब है हम इसको माइनस आइटम के कॉलम में एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस के टोटल को करेंगे जो कि 98,000 आ रहा है, और साथ साथ माइनस के टोटल को टोटल करेंगे जो आ रहा है 16,500। अब इस 98,000 में से हम 16,500 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा दैट इज कॉल्ड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें नॉर्मल बैलेंस था, पॉजिटिव बैलेंस था, कैश बुक और पासबुक का। अब हम मूव करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जहाँ से क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया होगा। सबसे पहले स्टेट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को ऑल स्टेटमेंट्स आई हैव रिटन हियर इन द सॉल्यूशन, सो चेक। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। जब जब बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का तो वो ओवरड्राफ्ट होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये फिगर जाएगी माइनस में। अब हम देखते हैं चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो मैंने जैसे आपको बताया, अमाउंट को आप एक मिनट साइड करो, पहले सबसे पहले आप देखो कि इफेक्ट क्या हो रहा है। तो जब जब चेक इश्यू होंगे, चेक डिपॉजिट होंगे, तो कैश बुक होगी प्लस और पासबुक क्या होगी, माइनस। बट अमाउंट कितना आएगा, चेक्स हमने डिपॉजिट किए 13,000 के, जिसमें से कितने चेक्स हुए कलेक्ट, सिर्फ 8,000 के। तो ऐसे कितने चेक्स हैं जो कलेक्ट नहीं हो पाए, तो हम उसको निकाल देंगे उस फिगर को, 13,000 में से 8,000 को माइनस करके। तो 5,000 हमारी मिस्टेक फिगर, ऐसी फिगर है जिससे मिस्टेक हो रही है दोनों बुक्स के अंदर। तो अब कैश बुक कितने से बढ़ गई है, 5,000 से, और पासबुक कितने से कम हो गई, 5,000 से। और हम कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं, कैश बुक क्या हो रही है, कैश बुक बढ़ रही है, तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये एंट्री माइनस में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड ₹13,000 बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे, कैश बुक क्या हो जाएगी बच्चों, कैश बुक हो जाएगी प्लस और पासबुक हो जाएगी माइनस। अब हमें अमाउंट को देखना है, वो क्या अमाउंट है जिससे हमारी ये मिस्टेक हो रही है दोनों बुक्स के अंदर। चेक्स डिपॉजिट किए 13,000 के, जिसमें से 8 चेक्स फॉर ₹8,000 वर कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 7 जून। इसका मतलब ये जो हमारा बीआरएस बन रहा है, 31 मई तक बन रहा है। तो 31 मई तक हम देखते हैं कि कितने बुक्स में कितनी एंट्री हो चुकी, कितनी अमाउंट की। तो इस 13,000 में से सारे चेक्स बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं, सिर्फ एक चेक ऐसा है 8,000 का, या कुछ चेक्स ऐसे हैं जो 7 जून को कलेक्ट किए गए। इसका मतलब 31 मई तक इन वाले चेक्स की एंट्री नहीं हो पाई है। इसका मतलब यही ऐसा अमाउंट है जिस अमाउंट से दोनों बुक मिसमैच हो रही होंगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 8,000 को हम लेंगे कैश बुक के प्लस कॉलम में, प्लस बड़ा प्लस हो रही है और पासबुक माइनस हो रही है। और कैश बुक क्योंकि बढ़ रही है 8,000 से, तो हम इसको करेक्शन करने के लिए माइनस कर देंगे। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि हमने कभी कई बार डिफरेंस लिया है और कई बार हम वही अमाउंट ले रहे हैं, तो बच्चों उसका क्लैरिफिकेशन ये है कि जब कुछ चेक इशू या डिपॉजिट होते हैं, उसमें से कुछ चेक कलेक्ट हो जाएं इसी टाइम फ्रेम में, यानी 31 मई तक या उससे पहले तक, तो उस केस में हम डिफरेंस अमाउंट को एक मिस्टेक फिगर लेते हैं जो गलती वाली अमाउंट है। बट ऐसे केस में जहाँ पे बियॉन्ड द डेट जा रही है, डेट यानी 31 में आगे जा रही है डेट, जैसे 7 जून, 31 मई से आगे जा रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यही वो चेक्स हैं जो बैंक ने कलेक्ट नहीं करे हैं टिल द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस केस में हमारा जो फिगर होगा, जो मिस्टेकन फिगर होगा, वो होगा 8,000। नाउ नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक वाज ओवरकास्ट।
तो अगर क्रेडिट साइड पासबुक का मतलब होता है, पासबुक का जो क्रेडिट साइड होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। अगर वो ओवरकास्ट हो रही है इसका मतलब पासबुक बढ़ रही है। तो पासबुक बढ़ रही है इसका मतलब पासबुक 4400 से बढ़ रही है, और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कैशबुक के पास नहीं, तो कैशबुक नहीं बढ़ रही है। क्योंकि हम पास कैशबुक को फॉलो कर रहे हैं और कैशबुक हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम करेक्शन करने के लिए क्या कर देंगे, इसको हम प्लस आइटम में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो राइट। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट हम बात, चेक ऑफ 2000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने एक चेक बैंक में कलेक्शन होने के लिए भेजा। जब जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी, चेक सेंड टू बैंक फॉर डिपॉजिट और फॉर कलेक्शन, तो कैश उस केस में डायरेक्टली बढ़ जाएगी। और बट क्योंकि वो रिटर्न हो गया है, वो चेक यानी पासबुक में वो एंटर नहीं हो पाया, और बैंक ने उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है, तो उस केस में कैश बुक तो बढ़ी रहेगी और पासबुक नहीं बढ़ेगी, राइट। सो कैश बुक, क्योंकि हमारी कैश बुक बढ़ रही है और हम कैश बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब क्योंकि कैश बुक बढ़ रही है तो करेक्शन कैसे होगा, कैश बुक को माइनस कर देंगे, ये 2000 माइनस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ₹500 रिकॉर्डेड एज ₹50 इन द पासबुक। अब आप देखिए, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक ने ₹500 का इंटरेस्ट चार्ज किया है, और जबकि उसको ₹50 500 का चार्ज लगाया है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कितने की है, ₹50 की। तो उस केस में जो हमारी पासबुक है, ₹500 से कम होना चाहिए, बट बैंक ने कितने से कम किया है उसको, सिर्फ ₹50 से। इस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि बैंक ने ₹450 से जो पासबुक कम होनी चाहिए थी वो कम नहीं हुई है। तो उस केस में क्या होगा कि जो 450 की जो एंट्री है उस उससे क्या हो जाएगा, वो पासबुक क्या हो जाएगी, पासबुक विल रिमेन इंक्रीज। ये गलती से माइनस का साइन लगा हुआ है, तो पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस, और कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस 450 से, राइट। अब आप देखेंगे, ये जो कैश बुक है ये क्या हो रही है, कैश बुक क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्शन करने के लिए, क्योंकि कैश बुक कम हो रही है, तो इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको प्लस के कॉलम में एंटर कर देंगे 450। और इस केस में हमारा ये जो टोटल है, ये थोड़ा सा हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि देयर वाज अ मिस्टेक इन दिस सोल्यूशन, सो लेट मी करेक्ट दिस मिस्टेक। तो ये टोटल हो जाएगा 81,000, और ये हो जाएगा 4850, राइट। अब इस 81,000 से हम इस 4850 को माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट मी करेक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट, तो ये आ जाएगा 150, एंड दिस इज 76,150। और लेट मी करेक्ट दिस वैल्यू एज हियर ऑल्सो। सो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 81,000 माइनस 4850, राइट। मूव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब दिया हुआ है ओवर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, राइट। तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो इसकी जो एंट्री है फर्स्ट, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये आ जाएगा माइनस कॉलम में 16,500। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन हमारे पासबुक के हिसाब से होगा, यानी पासबुक अगर बढ़ेगी तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, और पासबुक कम होगी तो हम इसको बढ़ा देंगे, प्लस कॉलम में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Checks deposited 11,500, but bank has collected only checks of rupees 3,500। यानी जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे, कैश बुक प्लस होगी और पासबुक माइनस होगी, ये तो हमें पता ही है। बट अमाउंट कितना होगा, अमाउंट को कंसिडर कर लेते हैं। चेक्स डिपॉजिट किए गए 11,500 के, जिसमें से कितने चेक्स कलेक्ट किए गए बैंक ने, सिर्फ 3,500 के। इसका मतलब कितने चेक्स हैं जो बैंक ने कलेक्ट नहीं किए हैं, तो वो हैं, हम इसको निकाल देंगे 11,500 से, 3,500 को माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस आएगा हमारा वो, हम उसको यहाँ 8,000 को एंटरटेन कर लेंगे। तो अब देखो ये इफेक्ट है इसका, कैश बुक बढ़ रही है और पासबुक कम हो रही है। क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, तो पासबुक क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंक डेबिटेड 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर द स्ट्रेंथनिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने हमारी पासबुक बैलेंस को डेबिट कर लिया है, इसका मतलब पासबुक को कम कर लिया, और पासबुक कम हो रही है। तो पासबुक कम हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको प्लस कर देंगे। तो इस केस में ये एंट्री आ जाएगी प्लस कॉलम में।
चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया बैंक डेबिटेड है, बैंक ने डेबिट किया है पासबुक को, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है अकाउंट होल्डर का, तो उस केस में पासबुक को बैंक ने माइनस कर दिया है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक विल रिमेन एज पॉजिटिव। तो क्या पास, क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं और पासबुक माइनस हो रही है, करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉलम, रिसिप्ट साइड ऑफ द पासबुक वाज ओवरकास्ट। तो अगर पासबुक की रिसिप्ट साइड बढ़ जाएगी तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो पासबुक प्लस हो जाएगी और कैश बुक प्लस नहीं होगी, क्योंकि पासबुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं और पासबुक प्लस हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम माइनस में कर डिक्रीज कर देंगे, यानी इसको कम कर देंगे। कम करने के लिए इसको हमने माइनस में एंटर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ रुपीज 2500 डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट होने के लिए भेजा है, जिसको कैश बुक में उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। इसका मतलब एक बार तो रिकॉर्डिंग होनी थी, हमने उसको एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया है। इसका मतलब ये होगा कि हमारी कैश बुक 2500 से बढ़ गई है और पासबुक 2500 से कम हो जाएगी। इस केस में कैश बुक क्योंकि बढ़ रही है और पासबुक कम हो रही है और हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्योंकि पासबुक कम हो रही है तो हम इसको बढ़ा देंगे। इस बढ़ाने के लिए हम इसको प्लस में एंटर करेंगे, तो ये एंट्री प्लस में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट नंबर नेक्स्ट। A check of 3000 sent to bank for collection was recorded in cash column of cash book. एक चेक था, हमने बैंक में भेजा था डिपॉजिट होने के लिए, बट गलती से उसको हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर डीलिंग ओनली विद द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, बट वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है। इस केस में कैश बुक क्या हो जाएगी, कैश बुक कम हो जाएगी और पासबुक बढ़ जाएगी। क्योंकि पासबुक बढ़ रही है तो करेक्शन कैसे होगा, इसको हम माइनस कर देंगे। फिर हम इसका टोटल करेंगे माइनस कॉलम का, जो आ रहा है 22,500, और इसमें से इस टोटल को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आ जाएगा उस स्टेटमेंट को हम लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है, तो ये प्लस आइटम में अमाउंट आ जाएगा 44,000। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, जो भी हम ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सिर्फ कैश बुक के हिसाब से होंगी। अगर कैश बुक बढ़ रही है तो हम इसको माइनस में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश बुक कम हो रही है तो इसको हम प्लस में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज द ओनली रूल ऑफ दिस चैप्टर। चलिए लेट्स स्टार्ट। चेक इशूड ऑफ 15,000। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट क्या होता है, कैश बुक चेक इशू करने से माइनस होती है और पासबुक प्लस होती है। तो कैश फ्लो क्योंकि माइनस हो रही है तो हम इसको प्लस में एंटर करेंगे, बट हमारा क्वेश्चन है अमाउंट क्या होगी जिसको हम एंटर करेंगे। तो चलिए इस अमाउंट को समझ लेते हैं। चेक इशूड 15,000 आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 5,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th अप्रैल। तो इसका मतलब हमने जो चेक इशू करे हैं उसमें से 5,000 रुपीज़ के चेक ऐसे हैं जो 31 मार्च के बाद प्रेजेंट हुए हैं, यानी 31 मार्च तक ये वाले चेक्स प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो इसका मतलब हमारे केस में जो हमारी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो सिर्फ इस 5,000 की वजह से आ रहा होगा। तो हम जो अमाउंट लेंगे, हम वो अमाउंट लेंगे 5,000। तो इस केस में कैश बुक 5,000 से कम हो रही है और पासबुक 5,000 से प्लस हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कैश बुक जब जब कम होगी तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, प्लस में हो जाएगी। तो ये अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस आइटम में 5,000 की सी एंट्री आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड ऑफ रुपीज 6,500 बट चेक्स ऑफ 3,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली। अब आप देखिए, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है और इस वाली स्टेटमेंट को कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ भी चेक इशू है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो चेक्स हैं 3,200 रुपीज के, दिए हुए प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ओनली। इसका मतलब टिल द March 31, 2025 से इतनी चेक्स हैं जो प्रेजेंट हो पाए। तो वो ऐसे कितनी चेक्स हैं जो प्रेजेंट नहीं हो पाए। सो हम क्या उसको कैसे निकालेंगे, 6,500 से 3,200 को माइनस करेंगे तो फिगर आ जाएगी 3,300। तो 3,300 रुपीज़ के चेक्स ऐसे हैं, ऐसे हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए। तो हम कैश बुक को माइनस कर देंगे 3,300 से और 500 को प्लस कर देंगे 3,300 से। तो कैश बुक क्योंकि माइनस हो रही है तो हम इसका इफेक्ट है, कैश बुक माइनस हो रही है तो उसको प्लस कर देंगे 3,300 से पॉजिटिव वैल्यू रुपीज पावर में रख जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड वर्थ रुपीज 20,000 और विच चेक्स वर्थ रुपीज 4,000 वर कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 31 मार्च 2025। हमने चेक्स डिपॉजिट किए, इसका मतलब जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे कैश बुक प्लस होगी और पासबुक माइनस होगी।
राइट, क्योंकि कैश बुक प्लस हो रही है तो इस स्टेटमेंट का जो इफेक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, बट उससे पहले हमें ये अमाउंट को कंसिडर करना पड़ेगा। वो क्या अमाउंट है जो हमने रिकॉर्ड में लेना है। तो अब समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। चेक्स डिपॉजिट 22,000 आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 4,000 वर कलेक्टेड बाय द बैंक टिल मार्च 2025। यानी इस 22,000 में से 4,000 के चेक्स ऐसे हैं जिसको बैंक ने कलेक्ट किया है, और बाकी चेक्स को जो कलेक्ट किया गया है वो 6 अप्रैल को कलेक्ट किया गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ 4,000 के चेक्स ही डिपॉजिट हो पाए हैं पासबुक में, यानी जो बाकी बची हुई चेक्स 18,000 रुपीज़ की हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाए हैं। तो जो मिस्टेक हो रही है दोनों बुक्स के अंदर वो हो रही है 18,000 से। तो कैश बुक प्लस होगी 18,000 से और पासबुक माइनस होगी 18,000 से। क्योंकि कैश बुक प्लस हो रही है तो इसका करेक्शन कैसे होगा, इसको हम माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक, यानी जो विड्रॉल कॉलम होता है डेबिट कॉलम, डेबिट कॉलम में पासबुक अंडरकास्ट। अगर पासबुक का विड्रॉल कॉलम कम हो रहा है इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो पासबुक बढ़ गई है और कैश बुक कम हो गई है। क्योंकि कैश बुक कम हो रही है 900 से, तो इसका करेक्शन कैसे होगा, इसको हम प्लस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 1275 एज 1257। बैंक के पास कुछ पासबुक में कुछ रिकॉर्डिंग कैश डिपॉजिट हुआ है 1275 को, जिसको बैंक ने बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने 1257 लिख दिया है। इसका इफेक्ट ये है कि बैंक ने 18 रुपीज़ से पासबुक को कम कर दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पासबुक 18 रुपीज़ से कम हो रही है और कैश बुक 18 रुपीज़ से बढ़ रही है। तो इस केस में जो हमारा कैश बुक है वो क्योंकि 18 रुपीज़ से बढ़ रहा है तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे, उसको हम करेक्शन करने के लिए हम उसको इसकी एंट्री को माइनस में कर देंगे, जो यहाँ बाय मिस्टेक लिखा नहीं है। तो लेट मी करेक्ट दिस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर चेक ऑफ 3,000 डिपॉजिटेड बाय अनदर कस्टमर। यानी पासबुक में क्रेडिट का बैलेंस है, चेक डिपॉजिट किया गया है। जब जब चेक डिपॉजिट होगा पासबुक में तो पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक नहीं बढ़ेगी। क्योंकि कैश बुक नहीं बढ़ रही है, कैश बुक कम हो रही है, तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे, उसको हम प्लस आइटम लिख के बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं। चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जब जब चेक्स बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे जाएंगे तो कैश बुक बढ़ेगी और पासबुक कम होगी। तो कैश बुक क्योंकि बढ़ रही है 5600 से, एक तो ये स्टेटमेंट है और एक और स्टेटमेंट है, वाइल चेक ऑफ 1200 वाज रिसीव्ड एज अनपेड। तो एक चेक और है जिसको जिसको बैंक में डिपॉजिट होने के लिए भेजा गया है लेकिन बैंक ने उसको वापस कर दिया है। तो इस पूरे केस में कैश बुक हमारी 5600 प्लस 1200 यानी 6800 से कैश बुक बढ़ रही है और 6800 से पासबुक कम हो रही है। क्योंकि हम कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं तो कैश बुक बढ़ रही है 6800 से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेक्शन करने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे। तो अब हम इसका टोटल निकाल देते हैं। टोटल में क्योंकि ऊपर जो 18 की एंट्री है वो मैंने की नहीं थी तो मैं इसको लिख देता हूँ 18, और ये यहाँ भी आ जाएगा। राइट, तो अब क्या करेंगे, टोटल से माइनस में टोटल का माइनस कर देंगे। तो जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 388, 382। राइट, यहाँ भी करेक्शन कर देता हूँ उसको। यहाँ करेक्शन कर देता हूँ 68। तो ये हमारा अब इस करेक्शन ट्रांजेक्शन एंटर करने के बाद हमारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर 500 मैच कर जाएगा। तो एक थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, so take bit on that and थोड़ी सी अटेंशन पे करिए स्टूडेंट, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 30th अप्रैल 2025। अब जो बैलेंस दिया हुआ है वो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पासबुक के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सी, सबसे पहली स्टेटमेंट आ जाएगी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसकी एंट्री आ जाएगी प्लस आइटम में। अब ध्यान ये रखना है कि हमने सिर्फ पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर पासबुक बढ़ रही है तो इसको हाँ कर देंगे और कम हो रही है तो इसको बढ़ा देंगे। चलिए, so पहली स्टेटमेंट है चेक इशूड वर्थ रुपीज 19,500, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ रुपीज 5,600 वर नॉट कलेक्टेड, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट ऑल। सो चेक इशू करने से कैश बुक क्या होती है माइनस और पासबुक क्या होती है प्लस। तो चेक कितने इशू किए गए, 19,500 के चेक इशू किए गए जिसमें से
5600 के चेक्स प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। तो इसका मतलब जो कैश बुक हमारी जो फिगर है, जो मिस्टेक फिगर है जिससे दोनों बुक्स में डिफरेंस आ रहा है, वो अमाउंट होगा 5600। तो कैश बुक 5600 से माइनस हो जाएगी और पासबुक 5600 से प्लस हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन पासबुक के हिसाब से है और पासबुक बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, पासबुक को माइनस करेक्शन करने के लिए इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड worth rupees 24,500, out of which checks worth rupees 7,000 were collected by bank on 2nd April. We have sent checks worth rupees 24,500, out of which checks of 7,000 were only collected on 2nd April. 2nd April, no, it should be 2nd May, right? So let me correct this. It should be 2nd May. So इसका मतलब 30th April तक इन चेक्स, ये 7,000 के चेक्स कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो इसका मतलब जो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा होगा, वो आ रहा होगा इस 7,000 से। तो कैश बुक में 7,000 प्लस हो जाएगा और पासबुक में 7,000 माइनस हो जाएगा। एज यू नो, पासबुक इज डिक्रीजिंग बाय 7,000, ये इसका इफेक्ट है। एंड हाउ टू करेक्ट इट, क्योंकि ये कम हो रही है तो हम इसको बढ़ा देंगे। बढ़ा देने का मतलब हम इसको प्लस में एंटर कर देंगे। Let's move to next question, next statement. Credit balance of 1500 of the passbook on page number 4 was recorded as debit balance. पासबुक का एक फेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस पेज नंबर 4 से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो उसको पेज नंबर 5 पर डेबिट बैलेंस की तरह लिख दिया गया। इसका मतलब हमने पासबुक जो पॉजिटिव है, बजाय कि उसको प्लस करने के, हमने उसको माइनस कर दिया। इसका मतलब जो हमारी कैश बुक है, वो हमारी 3000 यानी डबल अमाउंट से माइनस हो गई है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, पासबुक माइनस है 3000 से और कैश बुक प्लस है 3000 से। क्योंकि पासबुक 3000 से माइनस हो गई है, तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये एंट्री प्लस में आ जाएगी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अ बिल ऑफ रुपीज 4000 डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 3800। एक बिल था। बिल नॉर्मली एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसको बैंक में डिपॉजिट करके कुछ डिस्काउंट पे बैंक से उसको इनकैश करा जाता है। तो बैंक कुछ डिस्काउंट चार्ज करेगा और बाकी जो अमाउंट है उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देगा। तो वो कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो 4000 का बिल था, जिसको बैंक ने 3800 में इनकैश कराया। इसका मतलब जो पासबुक है वो कितने से क्रेडिट हो गई है, 3800 से। लेकिन हुआ क्या है, वो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है। तो बिल जब डिसऑनर होगा, तो बैंक ने, क्योंकि 4000 के बदले में 3800 रुपीज दिया है, 200 बैंक का प्रॉफिट है। और जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा, तो बैंक अपना सारा पैसा वापस ले लेगा। तो बैंक ने क्या किया है, बैंक हैज डेबिटेड द एंटायर बैलेंस इन पासबुक, राइट। यानी बैंक ने अपना वापस पैसा ले लिया है। तो बैंक ने क्या किया है, बैंक ने वो पैसा होल्डर के पास से चार्ज किया। तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, उसको समझने के लिए हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। बिल जो डिस्काउंट कराया गया, 4000 का बिल था, बैंक ने कितना पैसा लिया, 3800। बैंक को वापस कितना चाहिए था, 4000। बैंक जैसे डिस्काउंट हुआ ये बिल, बैंक ने अपना पूरा 4000 रुपीज वापस ले लिया है। तो उस केस में बैंक ने पासबुक को 200 से और माइनस कर लिया है, राइट। तो इस केस में पासबुक क्या हो रही है, 200 से माइनस हो रही है और कैश बुक 200 से प्लस हो रही है। क्योंकि पासबुक माइनस हो रही है 200 से, ये इसका इफेक्ट है। तो हाउ टू करेक्ट इट, इसको हम करेक्ट करने के लिए इसको बढ़ा देंगे, इसको हम प्लस आइटम में एंटर कर देंगे। आई नो दिस इज लिटिल ट्रिकी स्टेटमेंट, बट आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन। आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 5000 रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट बैंक। एक चेक था जिसको हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है, यानी कैश बुक तो बढ़ा दी गई है, बट पासबुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो इसका इफेक्ट ये है, सॉरी, एक चेक था 5000 जिसको रिकॉर्ड किया गया बैंक कॉलम कैश बुक बट नॉट बैंक, राइट। और ये क्या किया है कि कैश बुक में इसको एंटर किया है, तो कैश बुक क्या हो जाएगी, कैश बुक प्लस हो जाएगी, ठीक है। और पासबुक क्या हो जाएगी, पासबुक माइनस हो जाएगी। क्योंकि पासबुक माइनस हो रही है, तो इसका करेक्शन कैसे होगा, क्योंकि पासबुक माइनस हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे, इसको प्लस में एंटर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड रुपीज 2000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। हमें चेक मिला है 2000 रुपये का, जिसको हमने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। एक बार तो रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड माना जाता है, जो दूसरे वाली रिकॉर्डिंग है वो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया गया है, यानी कैश बुक को हमने 2000 से बढ़ा दिया है। कैश बुक 2000 से बढ़ गई है और पासबुक 2000 से कम हो गई है। सिंस हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं और पासबुक माइनस हो रही है, तो इसका इफेक्ट है, इसका करेक्शन कैसे होगा, इसको हम बढ़ा देंगे, यानी बढ़ाने के लिए इसको हम प्लस कॉलम में एंटर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 3500। यानी जो बैंक कॉलम है कैश बुक का, क्रेडिट साइड को
बढ़ा दिया गया है। यानी जो हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड, अगर पेमेंट साइड बढ़ गई है इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट होगा कैश बुक बढ़ जाएगी और पासबुक नहीं बढ़ेगी। क्योंकि पासबुक नहीं बढ़ रही है तो हम इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए हम इसको प्लस के आइटम के कॉलम में इसको एंटर करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 700 बट रिकॉर्डेड एज डेबिट इन पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है 700 का, जिसको पासबुक में क्रेडिट रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन बैंक ने उसको डेबिट कर दिया है। इसका मतलब बैंक ने 700 से पासबुक को बढ़ाने की बजाय पासबुक को 700 से कम कर दिया है। इसका मतलब बैंक ने पासबुक को डबल अमाउंट से कम कर दिया है। डबल अमाउंट का मतलब है कि बैंक ने पासबुक को 1400 से कम कर दिया है और कैश बुक 1400 से प्लस हो गई है, ठीक है। पासबुक क्या हो रही है 1400 से माइनस हो रही है, क्योंकि हम पासबुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट यहाँ नहीं आएगा, ये 1400 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पासबुक कम हो रही है। तो हमने क्या किया, इसको पासबुक को बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट बाय 3600 ऑन 27 अप्रैल। बैंक ने 27 अप्रैल को जो हमारा बैंक बैलेंस अकाउंट है जो पासबुक ने उसको डेबिट कर दिया है। इसका मतलब पासबुक को कम कर दिया है और इसको वापस रिवर्स कर दिया है, यानी करेक्ट कर दिया है। बट कब करेक्ट किया है, 7 मई को। बट हमारा जो BRS है वो 30 अप्रैल तक बन रहा है, तो 30 अप्रैल तक ये ट्रांजेक्शन एज इट इज़ रही है। तो इस केस में हमारा जो इफेक्ट है वही रहेगा कि जो पासबुक है हमारी 3600 से माइनस हो रही है और और कैश बुक हमारी 3600 से प्लस हो रही है। क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, पासबुक माइनस हो रही है, तो ये एंट्री प्लस में आ जाएगी 3600। तो अब हम इसका टोटल आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ मिस्टेक थी इसमें। सो लेट मी करेक्ट दिस मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हो जाएगा 5600 और इसका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 157,400। 157,400। इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे 5600 को, तो ये माइनस करके वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, लेट मी करेक्ट दिस, 151,800। सो इसकी स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी और स्टेटमेंट लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, नॉट एज अ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। आई नो ये जो थोड़ी क्वेश्चन है थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड नाउ। Okay, now look at this question number 11. Now, balance as per overdraft as per cash book is given 99,000, and these are the statement which we have to take into the consideration. And थोड़ा सा इनको करने से पहले समझ लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड, तो जब जब चेक डिपॉजिट होंगे तो कैश बुक क्या होगी, कैश बुक होगी प्लस और पासबुक क्या होगी माइनस, राइट। बट अमाउंट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर। चेक्स कितने के डिपॉजिट किए गए, 13,000 के, जिसमें से चेक्स ऑफ रुपीज 4,000 एंड चेक्स ऑफ 3,000 का डिसऑनर्ड। इट मींस 4,000 के ऐसे चेक्स हैं जो कलेक्ट ही नहीं हो पाए और 3,000 के ऐसे चेक्स हैं जो डिसऑनर्ड हो गए। इसका मतलब टोटल ऐसी कितना अमाउंट है जिससे दोनों बुक मिसमैच हो गई हैं, एक 4,000 और ये 7,000, 3,000। तो 7,000 से कैश बुक प्लस हो जाएगी और पासबुक 7,000 से माइनस हो जाएगी। नाउ जस्ट सी द सॉल्यूशन। चेक, कैश बुक 7,000 से बढ़ गई है और ये तो इसका इफेक्ट है। और करेक्शन कैसे करेंगे इसको, हम इसको क्योंकि कैश बुक बढ़ रही है तो इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे 7,000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक्स डिपॉजिटेड 18,000, तो जब जब चेक्स डिपॉजिट होंगे कैश बुक प्लस होती है और पासबुक क्या होती है, पासबुक होती है माइनस। बट अमाउंट वी हैव कंसिडर्स, सो अमाउंट को कंसिडर करने के लिए हमें स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। चेक्स डिपॉजिटेड वर्थ रुपीज 18,000, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 8,000 वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 7 जून। तो इसमें से ऐसे 8,000 के चेक्स ऐसे हैं जो टिल 7 जून बैंक ने कलेक्ट नहीं किए हैं। इसका मतलब
31 मई तक सारी चेक्स डिपॉजिट हो गए एक्सेप्ट दीज 8,000 चेक। तो यानी जो दोनों बुक मिसमैच हो रही होंगे वो 8,000 से हो रही होंगी, तो इसका इफेक्ट ये होगा कैश बुक 8,000 से बढ़ जाएगी और पासबुक 8,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि हम कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं और कैश बुक बढ़ रही है। तो कैश बुक बढ़ रही है तो इसको कैसे करेक्शन करेंगे, इसको हम माइनस में एंटर कर देंगे, वही माइनस में वैल्यू आ जाएगी, राइट। और एक मिनट इस फिगर को मैं करेक्ट कर लेता हूँ कैश बुक, क्योंकि ये ऑलराइट, ऑलराइट करेक्ट फाइन। नेक्स्ट मूव नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 6500। तो बैंक जब भी इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा तो पासबुक को क्या करेगा, पासबुक को बढ़ा देगा, और कैश बुक नहीं बढ़ेगी। तो कैश बुक नहीं बढ़ रही है तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे, यानी इसको हम प्लस कॉलम में लिख के इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, out of checks of rupees 10,000 issued, checks aggregating 2,000 were debited in May, and checks amounting to rupees 3,500 were debited in June, and rest of checks were not debited. मीन 31 मई तक हमारे जो 10,000 के चेक इशू किए गए थे उसमें सिर्फ 2,000 के ऐसे चेक हैं जो क्लियर हुए हैं, यानी 8,000 के ऐसे चेक्स हैं जो मई में क्लियर नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब ये लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल 3,500 के चेक्स ऐसे हैं जून में हुए डेबिट, और रेस्ट चेक्स हैव नॉट बीन डेबिटेड। इसका मतलब 10,000 में से 2,000 के चेक्स ऐसे हैं जो बैंक पासबुक में क्लियर हो पाए हैं, तो 8,000 के ऐसे चेक्स हैं जिन जो पासबुक में क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो इस केस में कैश बुक हमारी कितने से कम हो जाएगी, 8,000 से, और पासबुक कितने से बढ़ जाएगी, 8,000 से। सो क्योंकि पास कैश बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और कैश बुक बढ़ रही है, तो इसको करेक्शन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको कैश बुक हमारी कम हो रही है, तो कम हो रही है तो इसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने का मतलब हम इसको प्लस के कॉलम में एंटर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 7,000 डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। हमने एक चेक डिपॉजिट होने के लिए भेजा, जैसे ही चेक डिपॉजिट और कैश में कितना मिल जाएगा, क्योंकि हम कैश में कर रहे हैं तो आपको 7,000 से मिल है, तो इसको करेक्शन करने के लिए इसको 7,000 से माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा है इसको हमारी तो इसको हमने तो इसका है आप इंसान के लिए मतलब क्योंकि हमें कोई तो कोई इसको नहीं इंसान को नहीं समझता। और हमारे पास है हम हमारी तरह से इंसान को इसको मतलब ये कहते हैं और पास से निकालता है, तो इसका तो ये उपाय करनी है और इसका इसका तरह से अलग ही दूसरे तरह का और Pero sí, cosa pone también el caso de la teoría, el concepto de la teoría, de la teoría, también esto se hace esto que es saber de la situación de la teoría de la ley como tal, la ley es hecha sobre la ley, no es तो वो पास बताने वाले के लिए मैं भी नहीं था अरे सबसे पहले ये सबसे पहले और सारे बच्चे हैं सकते हैं तो रहेंगे तो बिल्कुल तो ये मेरे पास तो सबसे पहले इसका पहले और ये पास से पहले किसी को पहले से पहले और पास से पहले किसी चीज से और पास से हम नहीं सारे से पहले तो वही और फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं भी and then the first year open for the seven, and so we looking for the over the founding the तो जब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो इसका मतलब बैंक ने पासबुक को 500 से कम कर लिया है और कैश बुक 500 से बढ़ गई है, और क्योंकि हम कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, ये एंट्री जो कि है मिस हो गई है। सो लेट मी राइट दिस एंट्री आल्सो। नेक्स्ट, बैंक हैज कलेक्टेड एन अमाउंट ऑफ 3,000 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट। बैंक ने हमारे बिहाफ पर कुछ पैसा कलेक्ट किया 3,000 का, और और बैंक ने पासबुक को 4,000 से बढ़ाया है और 100 रुपीज से कम कर दिया है। तो अगर हम टोटल नेट फिगर निकालें तो बैंक जो हमारी पासबुक है वो 2,900 से बढ़ गई है। तो पासबुक 2,900 से बढ़ जाएगी, राइट। तो हमने ये बढ़ गई है पासबुक 2,900 से, और कैश बुक 2,900 से कम हो गई है, क्योंकि कैश बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और कैश बुक कम हो रही है 2,900 से, तो इसका करेक्शन क्या होगा, ये अमाउंट यहाँ ना करके
ये अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ रही है तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी 2900। चलिए नेक्स्ट, द पेमेंट साइड ऑफ कैश फ्लो कास्ट शॉर्ट। अब कैश फ्लो की जो पेमेंट साइड अगर कम होती है, कैश बुक का बैलेंस हमेशा बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा कैश बुक बढ़ जाएगी और पासबुक कम हो जाएगी, क्योंकि हम कैश बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। तो कैश बुक फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये एंट्री माइनस में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ 1000, a check of rupees 1000 sent to bank for collection and entered in cash column of cash book। तो हमने एक चेक भेजा है डिपॉजिट होने के लिए, लेकिन उसकी एंट्री बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करने की बजाय हमने उसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। इसका इफेक्ट ये हुआ है कि जो हमारी कैश बुक है वो कम हो जाएगी 1000 से, और पासबुक 1000 से बढ़ जाएगी। और कैश बुक क्योंकि कम हो रही है, तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे, इसका मतलब इसको प्लस में इसकी एंट्री कर देंगे। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। अ बिल ऑफ वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक। बिल रिटायरमेंट का मतलब हमारा एक बिल था जो बैंक ने पे कर दिया है, और वो भी बैंक हैज रिटायर्ड अ बिल अंडर अ रिबेट ऑफ 600 बट द फुल अमाउंट वाज एंटर्ड इन पासबुक। एक बिल था जिसको 600 डिस्काउंट के बाद पे करना था, बट बैंक ने उस डिस्काउंट को भी पासबुक में कंसिडर कर लिया। इसका मतलब बैंक ने पासबुक को 600 से कम कर दिया है, तो पासबुक 600 से कम हो जाएगी और कैश बुक 600 से बढ़ जाएगी। और क्योंकि कैश बुक बढ़ रही है 600 से, तो इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब ये है कि हमने कुछ पैसा अ, कुछ पैसा हमने ट्रांसफर किया है, अ, कुछ पैसा बैंक में ट्रांसफर किया है और इसका डिपॉजिट हो चुकी है, नहीं हो गया। तो समझो जब बैंक कुछ पैसा किसी हमारे कंपनी या किसी थर्ड पार्टी को भेजता है, तो हमें कुछ पैसा होगा, तो उस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे ये हमारा डेटा है, हमारा क्वालिफायर फॉर फॉर है, हमारे कंट्री का टोटल जा रहा है, हमारा क्वालिफायर फॉर फॉर है, और जो प्लस सिंबल होती है हमारे 15,000 16,000 ये टोटल आ रहा है 17,500। तो इस कंपाउंड हम पॉइंट की मदद से प्लस सिंबल को माइनस करेंगे, और जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको भर देंगे। तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दैट इज ये आ रहा है 1,119,000। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगर मैं इसको आते हैं, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा कैसे प्रोसेस विवरण भी कैसे तो ये सबसे पहले लाइन की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे लेवल वैल्यू से प्रोसेस। सबसे पहले लेवल लाइन कैसे प्रोसेस, तो इसको लिख सकते हैं यूजिंग प्रोसेस प्रोसेस, तो ये पहले माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर से बना कि बराबर प्रोसेस करेंगे, अगर प्रोसेस ना हो गया तो उसका सही कर देंगे, अगर प्रोसेस कर रहा है तो उसको शुरू कर देंगे।
हाँ जी। टैक्स रुपीज़ टेक्नोलॉजी टैक्स रुपीज़ 8,800 spent on for collection. Out of which tax of 50 million and cost of collection were collected on Nagaland and one for Sunday to the restaurant. तो हमारे पास वही कुछ टैक्स लगने वाली वकालत होने के लिए अगर वकालत होने के लिए अगर किया जाए टैक्स लगाना पैसे देने से कम हो जाएगी जिससे हम टैक्स का मतलब ये पैसे का मतलब आए हुए होते हैं सबसे पहले मतलब है हमारे टोटल टैक्स में टैक्स लगे जाते हैं जिसमें से सबसे अधिक क्या लग रहा है सबसे जो टैक्स टैक्स कम कराए तो टैक्स कर रहे हैं लोग कंट्री बढ़ेगी टैक्स को पास करने का जो के लिए तो उसको खत्म करते तो ये हमारा इसके साथ-साथ एक ऐसा चेक था जो मुसलमान को आता है टोटल अमाउंट ऐसा है जो इससे पासबुक कम हो रही है वो हो जाएगा 37,000 प्लस 32,000 तो पहले करेंगे तो ये तो हमारी जो पासबुक है कैश बुक हमारी 84 मिनट से हो रही है और पासबुक हमारी 84 मिनट से कम हो रही है और ये जो पासबुक कम हो रही है क्योंकि पासबुक कम हो रही है और हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको आगे बढ़ते हैं चेक इशूड 11,700 out of which checks of 6,000 were cleared on 28 June and one check of 1,200 was cleared on 29 June. All right. चेक इशू तो पैसे का हमारे माइनस कॉलम में एंटर कर देंगे कम करने के लिए नेक्स्ट वन ऑफ द डेटर ऑफ 8,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्व एंड ही पेड ओनली 40% डायरेक्टली टू द बैंक कोई हमारा एक पे कर दिया है तो सबसे पहले हम इस 8,000 का 40% निकाल लेते हैं जो कि आता है 3,200 तो हमारी पासबुक 3,200 से बढ़ जाएगी और कैश बुक हमारी 3,200 से कम हो जाएगी क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं और पासबुक बढ़ रही है तो इस केस में इसको हम पासबुक को कम कर देंगे कम कर लेके हमने क्या करना पड़ेगा इसका हमने कैश बुक पासबुक इसके माइनस कॉलम में एंटर करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अ चेक ऑफ 1,600 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट लॉस्ट इन द ट्रांजिट बाय द एजेंट बट नो इंटीमेशन गिवन बाय हिम एक चेक भेजा गया है बैंक में कलेक्शन के लिए बट दैट चेक वाज लॉस्ट इन द ट्रांजिट सो जब जब चेक हमने बैंक में भेजा तो हमारी कैश बुक प्लस हो जाएगी और पासबुक माइनस हो जाएगी क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं पासबुक हमारी कम हो रही है तो करेक्शन करने के लिए पासबुक को हम बढ़ा देंगे तो एंट्री के बढ़ाने के लिए प्लस कॉलम में आ जाएगी आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 12,000 का और और उस कलेक्शन के प्रोसीजर में बैंक को 200 रुपीज़ फी पे करना पड़ा है इसका मतलब बैंक ने पासबुक को 12,000 से तो बढ़ाया है और 100 से कम कर दिया है इसका मतलब अगर हम इन दोनों वैल्यू की नेट फिगर निकालें तो वो आ जाती है 11,800 इसका मतलब पासबुक 11,800 से बढ़ गई है और कैश बुक 11,800 से माइनस हो गई है सिंस वी आर फॉलोइंग पासबुक सो पासबुक इज इंक्रीजिंग तो हम इसको कम कर देंगे कम करने का क्या रूल है हम इसको माइनस में रिकॉर्ड कर लेंगे आगे बढ़ते हैं It was identified that one of the debtors had deposited 800 directly into the account and bank charged rupees 40 to the account on it. मतलब एक हमारा डेटर था जिसने 800 रुपीज़ डायरेक्टली डिपॉजिट किया है अकाउंट में और बैंक ने उस पर चार्ज लगाया है 40 रुपीज़ का इसका मतलब ये हुआ कि पासबुक को 800 से बैंक ने बढ़ाया है और 40 रुपीज़ से कम किया है अल्टीमेटली जो पासबुक है वो 760 से बढ़ गई है तो पासबुक 760 से बढ़ गई है और कैश बुक 760 से कम हो गई है क्योंकि पासबुक बढ़ रही है 760 से तो हम इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे यानी इसको कम कर देंगे कम करने का क्या रूल है हम इसको माइनस में एंटर कर देंगे राइट और आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट 3,000 बैंक ने पासबुक को गलती से डेबिट कर लिया यानी पासबुक को माइनस कर लिया है एंड हाउ एवर इट वॉज रेक्टिफाइड ऑन 4 जुलाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका रेक्टिफिकेशन 4 जुलाई को हुआ है टिल जून 30 इट वॉज नॉट रेक्टिफाइड इसका मतलब जो पासबुक है वो कम रही है 30 जून तक तो पासबुक हमारी कम हो गई है 3,000 से और कैश बुक हमारी 3,000 से बढ़ गई है
तो पासबुक क्योंकि कम हो गई है और पासबुक को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे, बढ़ाने के लिए हम इसको प्लस के कॉलम में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, यानी रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक है। इसका मतलब अगर रिसीप्ट साइड कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो कैश बुक 1400 से कम हो गई है और पासबुक 1400 से बढ़ गई है, और पासबुक क्योंकि 1400 से बढ़ गई है तो उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कम करने के लिए हम उसको माइनस में एंटर करेंगे। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ 9000 रिटायर्ड बाय द बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक बिल था जिसको हमने पे करना था, बैंक ने उस बिल को पे किया, 9000 का बिल था, बट बैंक ने उसको 10% डिस्काउंट पे किया है। इसका मतलब बैंक ने 8100 रुपीज़ का पेमेंट किया है, माइनस किया है, बट कैश बुक में but the full amount debited in uh, full amount is not debited, it is credited in cash book। इसका मतलब हमने कैश बुक को 900 से, let me correct this, full amount debited in passbook, यानी बैंक पासबुक को 8100 से माइनस करना चाहिए था, बट बैंक ने क्या किया है, बैंक ने पूरे 9000 से पासबुक को माइनस कर दिया है। इसका मतलब बैंक ने 900 एक्स्ट्रा अमाउंट से पासबुक को माइनस कर दिया है, और कैश बुक एक्स 900 से प्लस हो गई है। और क्योंकि हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं, पासबुक 900 हो रही है माइनस से, तो पासबुक को हम करेक्शन करने के लिए क्या करें, बढ़ा देंगे, बढ़ाएगा प्लस में करेंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा प्लस में 900। आगे नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 800 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। अब बैंक चार्जेस बैंक ने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया है, एक बार करेक्शन, एक बार तो सही करेक्ट किया गया है, और जो मिस्टेक है सिर्फ एक बार एक्स्ट्रा मिस्टेक की गई है। तो बैंक चार्जेस से पासबुक क्या होती है, माइनस होती है। तो पासबुक माइनस हो रही है और कैश बुक प्लस हो रही है, और सिंस वी आर फॉलोइंग पासबुक एंड पासबुक इज माइनस, तो हम इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए हम इसको प्लस कॉलम में एंटर करेंगे, और ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगी। अब हम इन दोनों साइड में टोटल करेंगे, तो माइनस साइड में टोटल किया 61,860, और प्लस साइड में टोटल आ रहा है 14,700। इस 61,860 में से हम 14,700 माइनस करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आ जाएगा उसको हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर, rather credit balance we will write it overdraft as per, we can write it, क्योंकि हमने पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो इसे लिखा जाता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो ये पूरा सॉल्यूशन है इन सारे क्वेश्चंस का। आप लोग एक बार ध्यान से रिव्यू करिए, देखिए स्टूडेंट भी प्रॉब्लम दे, कोई भी स्टेटमेंट समझ में ना आए तो यू कैन raise your query, I will definitely answer your query। So this is all about this chapter, and अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल होंगी।